Assalamualaikum, good morning. Once again, warmly welcome to my all grade 10 student 10A and 10B. Okay. As you very well know, now time we are in the chapter number. We are reading now time in these days. In the previous month, in the month of June is completed. Yet the month of June is completed regarding your Park Studies chapter number 5. Okay. आपने जैसे कि इन प्रोग्रेस में आपने देखा होगा इन द बिगनिंग हम लोगों ने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया इनिशियल वेज में आई जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंट टेन्योर्स ऑफ द डिफरेंट लीडर्स एंड हिस्टोरिकल लीडर्स इन पाकिस्तान history, okay, which is related to the important part of the history of Pakistan part 2. We discuss about the Zulfikar Ali Bhutto, okay, we discuss about Mr. Zia, General Ziaul Haq, okay, further we discuss one more personality. देखिए इन पर्सनैलिटीज को डिस्कस करते हुए एक्सप्लेन करते हुए मैंने बारहा आप लोगों से कहा है कि इट कुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू टू यू बेटर नो more than better know about these all personalities regarding their what about their achievements, what about their reforms, what about their political, social, economical reforms which they done in their tenures, in their regions and in their tenures. For this purpose, क्योंकि बुक में मैंने जहाँ तक अब तक आप लोगों को साथ साथ पढ़ाया है, ये एक्सप्लेन किया है, बहुत सारी ऐसे पावर पॉइंट्स हैं जो कि बुक में नहीं है और मैंने इसीलिए आप लोगों को ऑलरेडी वो आप लोगों के जो ग्रुप हमारा बना हुआ है उसमें ऑलरेडी आपसे शेयर कर ली है. आई ऑलरेडी शेयर डिफरेंट टास्क ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू वांट टू यूटिलाइज इन योर डिटेल क्वेश्चंस. जब आप लोगों के लिए बने तो आप लोग उन पावर पॉइंट्स को, उन हेडिंग्स को, उन कैप्शंस को इन क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर लें. ओके, चैप्टर number 5, topic history of Pakistan part 2. Today open your book page number 14 and the personality we discuss and read about, that is the Muhammad Khan Janejo. The Muhammad Khan Janejo, its time is here mentioned on the whiteboard 1985 and 1988 and also we mentioned on the book. Please underline this time tenure. And what about this personality? मैंने इसका ऑलरेडी क्वेश्चन जो है आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, अभी कर देता हूँ जैसे मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ who was Muhammad Khan Janejo, a brief, a little introduction about this personality. Muhammad Khan Janejo was a former PPP, capital PPP, P. Okay, leader from Sindh. He basically belonged from the Sindh. Okay, leader from the Sindh. He belonged to a very small landlord family. Okay, he was very gentle by nature. He was really a very gentle person. Okay, and very soft spoken. ये इसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा था. अगर आप लोग यूट्यूब पे या डिफरेंट आप लोग अगर चैनल्स को अपना डाउनलोड करें तो इस पर्सनैलिटी के आप लोग रिफॉर्म्स के साथ साथ देखेंगे कितना सॉफ्ट स्पोकन था, थोड़ा बोलता था. जितने आजकल के हमारे पॉलिटिशियंस बोलते हैं या इस वक्त जितना उनका आउटस्पोकन लेवल है ऐसा नहीं था इनका. ओके, Janejo was an controversial person थे. Why? Who has acceptable to wide range of people. Wide range of people. Wide, W-I-D-E, wide range of people. Janejo formed a political party from elected members of the assemblies with himself being as a head. The party was to be called the League. Are deliberate references to the days of great Qaid-e-Azam. ये short name. Zia wanted to continue with the martial law, but there was enormous pressure on him at that time. So that was a little introduction about Mr. Khan Janejo. And what about the other reforms we can discuss in this power task, okay, reading task. Okay, please take your highlighter, lead pencil to underline the difficult timeline facts and different part of timeline fact for your MCQs, one word answer and short question 2. Okay, General Ziaul Haq amended 1973 constitution from the parliamentary to a presidential system. इसमें एक change आया, very good change in 1973. Okay, the president took at that time being as a president took, okay, complete powers and powers of parliament were कि ज़िया साहब ने एक complete power को एक complete strength के साथ being play a role of president and chief of army staff till 11 years. Okay. Non-party elections were held for the National Assembly in 1985. Okay, the first session of the National Assembly was called on 23rd March. और फिर 20 elections के बाद 23rd March को 1985 को Assembly का पहला session जो था बुलाया गया to discuss in the Augusta House about the different Pakistan strategies and matters. Okay, General Ziaul Haq took the oath. Mr. Zia took the oath. उन्होंने हलफ लिया being as the president for the next 5 years. 5 साल क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का टेन्योर होता है, उस टेन्योर के रिगार्डिंग ज़िया साहब ने बाकायदा तौर पे
प्रेसिडेंटशिप का हलफ लिया, एंड मोहम्मद खान जनेजो took the oath being as prime minister. Please watch this picture. This is where source part the picture source के आपको पता होना चाहिए कि आपके मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनका कितना टेन्योर था और वो किस तरह फिजिकली उनकी अपियरेंस थी. तो so that's why this person was at that time prime minister, and Mr. Zia Saab, General Ziaul Haq, at that time was being as a president, okay, president of Pakistan and chief of army staff too. Lifting of martial law, okay. General Ziaul Haq, martial law had completed 8 years. This scenario, this time is began day by day, year just gone and gone, past by past, और 8 years हो गए, 8 साल हो गए, 11 years total जनरल साहब में हमारे पास ज़िया साहब का टेन्योर था, लेकिन 8 years complete हो गए. After becoming prime minister, Mohammad Khan Janejo declared the martial law should be lifted. He declared in his speech, okay. Then the parliament and provincial assemblies passed the bill to lift it, which was done on the, please underline, the bill passed on 30 December 1985 from the provincial governments and from National Assembly, from Parliament, both of assemblies approved this bill. Mohammad Khan Janejo as the president of the Muslim League, okay, very good point. All the non-party members, all the non-other party members in the National Assembly formed an official parliamentary group in January after 1 year, 1985 के बाद, 1986 in the month of January 1986. Was named as the Pakistan Muslim League, जो इस वक्त जैसे PMLN है, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसको लीड करते हैं और अब शहबाज शरीफ साहब उसके को चेयरपर्सन हैं. So that's why that time Pakistan Muslim League is led by Mohammad Khan Janejo, and he was elected being as president too. पार्टी के प्रेसिडेंट भी उनको डिक्लेयर किया गया, यानी पार्टी सदर के तौर पे, being as Prime Minister Pakistan and being as a party president, अपनी पार्टी को लीड करते हुए अदर अपने मिनिस्टर्स के साथ, अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ. He started to expand the Muslim League membership in their country. जब भी कोई पार्टी आती है ना, याद रखें उस पार्टी को एक्सपैंड करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, बढ़ाने के लिए अदर प्रोविंसेस से लोगों को कलेक्ट किया जाता है, फ्रॉम कराची, फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम इस्लामाबाद, ओके, फ्रॉम यू से बलूचिस्तान. इधर से पार्टी के जो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, द पीपल विच वांट टू टेक और ज्वाइन दैट पार्टी, दे मस्ट कम फॉरवर्ड विद देयर डिफरेंट मोटिव्स. वो अपने डिफरेंट मोटिव्स के साथ अपनी जो लीडर होते हैं, जो उनके मुंतखब लीडर होते हैं, उनके साथ वो कैसे ब्रदरहुड अपना शो करते हैं. That time the provincial chief minister became Muslim League provincial president, and its offices were opened for all over in Pakistan. Okay, the Muslim League was organized as a political party. Please underline this point. The Muslim League was organized as a political party, and its primary unit started enrollment at a lower level. Lower level से यानी कि निचली सतह से ऊपर तक आना, from a root to being a developed tree. इसे आप कह सकते हैं as an example. फॉरेन टू, याद रखिए जब भी कोई गवर्नमेंट का रोल होता है ना, जब कोई गवर्नमेंट हमारी कंट्री में या अदर कंट्रीज में बनती है, तो खास करके जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसका सबसे बड़ा प्रायोरिटी रोल होता है हाउ टू डेवलप अ गुड रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज. बाहर के ममालिक के साथ हमारा कैसा रिलेशन होता है, फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, फ्रॉम द ईस्टर्न कंट्रीज, फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, फ्रॉम गल्फ स्टेट्स. ओके, देयर आर सम एमओस ऑलरेडी साइंड. There are some further projects which are going to sign by other countries. Like you take the example of now Imran Khan, whenever take oath being as a prime minister. In the initial days, the Saudi Arabia king, a royal king, take a decision to come in Pakistan. वो पाकिस्तान आए, different MOs पे sign हुए, फिर उन्होंने different हमारे लिए कह सकते हैं कि memorable, जिसे कहते हैं unforgettable, जैसे मूवमेंट्स का एक जो सिलसिला होता है, उसमें उन्होंने हमारे लिए चैरिटी डोनेट की, फंड्स डोनेट किए, मिलियन बिलियन ट्रिलियन के. So that's why being as a president and being as a party president and being as a prime minister Pakistan, first you take a decision to take a tour from the different western, eastern and Gulf state countries. Mr. Janejo. The lifting of martial law and the restoration of the democracy was welcomed by the foreign world. क्योंकि जब गवर्नमेंट नहीं आती ना, तो अदर कंट्रीज का उसमें इंटरेस्ट शो होता है. ये डिफरेंट कंट्रीज जो है वो कैसे हमारे कंट्री को, हमारे खित्ते में हम जिस खित्ते में हम रहते हैं, हमें अदर कंट्रीज कैसे वेलकम करते हैं. डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनके जो रेलिवेंट चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, वो वार्मली वेलकम करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, थ्रू टेलीफोनिकली, थ्रू लेटर, थ्रू SMS, थ्रू डिफरेंट ट्वीट्स के थ्रू करते हैं. अब तो लेटेस्ट आपको पता है एप्स हैं. मैं तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ. दैट टाइम कम्युनिकेशन वे थ्रू लेटर, थ्रू टेलीफोनिकली और थ्रू एम्बेसडरशिप होता था.
अब तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है कि डिफरेंट हमारे पास कम्युनिकेशन रिसोर्सेज होते हैं, जिसके लिए विद द बेस्ट ऑफ टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर को विशिंग आती रहती हैं. ओके, he take a decision to first man go Mohammad Khan Jinnah made successful tours of Turkey. Please underline this country: Turkey, Germany, and United States of America in 1986. After 85 and then 1986, different agreements of the mutual interest were signed during these tours. Keep in mind, whenever our amnesty, हमारे जो एमनेस्टी लीड होत करते हैं लीडर, ये अदर कंट्रीज में जाते हैं तो दे मेक श्योर टू शो देयर इंटरेस्ट इन देयर रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स. जैसे आप देख सकते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने अपने टेन्योर में रहते हुए मेट्रो बस सर्विस का या ये मोटरवे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो बने इनके टेन्योर में, इट मींस दीज आर द इंटरेस्ट व्हिच वी शेयर टू द अदर कंट्रीज लाइक ऑरेंज मेट्रो लाइन ट्रेन by the sponsor and co-sponsor, with the help of sponsor, with the advisors and engineers and with their reforms must be done from China. Okay, metro bus service with the support and with the interest of Turkey. इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर उन कंट्रीज के साथ हमारे इतने लॉन्ग चेन ड्यूरेबल रिलेशंस इतनी देर से चल रहे हैं तो फर्दर हम उनको कैसे प्रोसीड करते हैं, हमारे क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके कंट्री में इतने ज़्यादा इन है, और हम चाहते हैं कि अगर वहाँ के लोगों को इतना बेनिफिट मिल रहा है, वहाँ की पब्लिक इतना बेनिफिट्स एंजॉय करी, व्हाई आर पब्लिक नॉट गेटिंग दैट एडवांटेज, हमें क्यों ना मिले उसका. सो दैट्स व्हाई जुनेजो साहब ने जब इन कंट्रीज के एक बहुत ही कह सकते हैं कि लेविश वहाँ पर इंटरेस्ट अपने शो किए उस सब्जेक्ट के हिसाब से, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया. डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो's गवर्नमेंट, बट अबाउट द डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इनके टेन्योर में बने वो क्या थे. मोहम्मद खान जुनेजो's modesty, keep in mind, make sure, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था, being as soft spoken, kind hearted, honesty and national spirit. Keep in mind the leader, always that leader successful which having a national spirit, जिसके पास अपनी कौम को आगे लाने की एक सोच होगी, कौमी जज्बा होगा, वो लीडर बहुत कामयाब होता है, याद रखें. And were very much liked by the public, and even public liked him. Even when he speech, when he address on TV or open speeches, people really like him. Related to a soft, kind-hearted person, a person which having really a desire in his mind for his youth, for his country. Okay, for the sake of country. Okay, the seven Marla housing scheme. He introduced the different projects of development. Here, please underline this development program. The 7 Marla housing scheme, 5-point development program, and the plans to raise the literacy rate. Literacy rate is very most important for each and every government. ये जो भी government आती है उसके लिए different challenges होते हैं, education, health, ठीक है, literacy, ठीक है, poverty. So one is the literacy rate, okay, were appreciated, which played an important and very vital role for the development of the country, for the prosperity of the country, for the development of Pakistan. One most important this point, Ojri camp disaster, ये मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ. हमारे मुल्क में एक बहुत ही कमिटेड बात है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे ना कि प्राइम मिनिस्टर में, प्रेसिडेंट में, या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं उनके दरमियान क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं. कंट्री कभी भी स्मूथ काम कर सकता है अगर ये तीनों सोर्सेज जो है वो एक साथ चलें, ये तीनों पर्सन एक साथ चलें, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड आवर स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट टू. सो दिस इज द रीजन Chief of Army Staff was that time Mr. Zia. He was being as a president. Both of two charge, both of the one of the you say extremely richest charge of in Pakistan उनके पास थे. ये दो greatest उनके पास opportunities थी पाकिस्तान की क़यादत को चलाने के लिए, or to be look after the Pakistan. Okay, and other is Prime Minister. that Prime Minister जो था वो एक elected person है, वोट लेकर आता है, उस पर एतमाद का एक वोट होता है और उसका और प्रेसिडेंट का एक रोल होता है. बिकॉज बोथ ऑफ टू पर्सन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद वन एंड अदर. उनकी मीटिंग्स होती हैं, आप देखें कि जब भी तबादला ख्याल होता है प्राइम मिनिस्टर के दरमियान या प्रेसिडेंट के दरमियान, दे टेक वन टूवर्ड डिस्कशन, वेरी क्लोजली वन टूवर्ड डिस्कशन. ओके, एक इंसिडेंट हुआ था ओजरी कैंप डिजास्टर. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर जो उस वक्त हुआ और हजारों लोगों की जान इस इंसिडेंट में चली गई. डिस्ट्रक्शन एक आ गया था, मैसिव डिस्ट्रक्शन था. वो क्या था? A sudden fire broke out in an armed depot, okay, located between the Rawalpindi and Islamabad in 1988. It's a place, it's an army aviation place
कि यह आर्मी का एक डिपो था जहां पे एक ऑल ऑफ सडन आग लग जाती है, आतिश एक्सप्लोसिव मटेरियल वहां पे फट जाता है। ये क्या उसकी रिपोर्ट आती है, देखते हैं। मैनी सिटीजन्स वर किल्ड इन दिस डिजास्टर, ओके, वेरी इनोसेंट एंड many incident in this all of sudden incident, many citizens killed in this disaster after hectic efforts of 1 week, after hectic, जैसे अब ये रिसेंटली आपने देखा एयरप्लेन क्रैश हुआ तो इसकी रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिबेट थी, तो एक रिपोर्ट उसकी विद इन अ मंथ बाद पेश की गई और उसके क्या फैक्ट एंड फिगर्स हैं, यू कुड बी रीड थ्रू न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट टू। Okay, we discuss about the OGD camp, okay, efforts of 1 week. It was brought under the control. The Prime Minister was at that time, I'm just be tell you that the Prime Minister, Mr. Mohammad Khan Janejo, was on a tour of Sindh. ये चूंकि सिंध से बिलोंग करते थे और इनका कोई विजिट होगा टूर अपने आबाई प्लेस सिंध का, and the President on a tour of Kuwait. And Mr. Jizya that time was not in Pakistan, he was on the tour of कुवैत, वो कुवैत गए हुए थे, ठीक है, रॉयल एमनेस्टी के पास कुवैत उनका विजिट था। बोथ वर नॉट प्रेजेंट एट इन द सेम प्लेस इन रावलपिंडी इस्लामाबाद, ओके। व्हेन बोथ रिटर्न इमीडिएटली, जैसी ये खबर मिली, बोथ रिटर्न at their place in Islamabad. The Prime Minister formed an investigation committee and its report was presented to President Ziaul Haq. और फौरी तौर पे इस पूरे सिनेरियो का जो उस वक्त एक वाक़या इतना बड़ा हुआ और हजारों लोगों के उसमें जल के जान चली गई, झुलस गए, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। ये खाकान अब्बासी साहब के जो फादर हैं उस टाइम रॉयल इसमें एमनेस्टी का, इस गवर्नमेंट का हिस्सा थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएट बेसिस पे कहा कि रिप्रेजेंट किया जाए टू द प्रेसिडेंट मिस्टर जियाउल हक साहब को, ओके। एट दिस गवर्नमेंट डिसमिस एट दैट टाइम बाय जनेजो गवर्नमेंट को कैसे डिसमिस किया गया, कैसे इसको मतलब रिप्लेस किया गया, क्या इसमें चार्ज है, ओके। ड्यू टू सम पॉलिटिकल चेंजेस ऑल ऑफ सडन द थिंग वंस अगेन मैच दैट a conflict between prime minister and president. Why this conflict rise? ये क्यों ऐसा हुआ? Due to a certain political change. कैसे? Many different development between the president and the prime minister. याद देखिए prime minister और president में खास करके ये इशू सब आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सब क्रिएट होते हैं जब उन दोनों के माबैन किसी किस्म का तजाद शुरू हो जाता है। Both scatter. Distance उन दरमियान में आ जाता है, like prime minister is saying something different, president's statement is totally different, totally different, not matched with the prime minister. It means there's something little bit question mark कि why this thing is been happening there, ऐसा क्यों हो रहा है, why this thing's been happening there, okay. Due to the some political change and difference and some other kind of things happening on other matter, president and the prime minister in 1988, उसमें tenure में लेकिन 1985, then 1986, 1987. This is the tenure discussed in 1988 का ये incident है। After returning from the foreign tour, the Prime Minister called a press conference। जैसे ये सारा सूरत हाल हुई तो जनेजो साहब ने फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो लीगली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसको कॉल किया। एट वन कॉल ऑन द, प्लीज मेंशन द टाइमलाइन, ऑन 29 मई 1988, ओके, एट द एयरपोर्ट पे जैसे वो जनेजो साहब बाहर से आए, उन्होंने फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने कॉल ऑलरेडी इस चीज का क्लू दिया था कि ऑल द मीडिया, उसका तो मीडिया भी बड़ा रिजर्व होता था, तो ऑल द मीडिया पर्सन्स, एंकर पर्सन मस्ट बी रिमेन स्टिल एट एयरपोर्ट। जैसे वो एयरपोर्ट से उतरे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, एंड ही आंसर्ड द क्वेश्चन ऑफ द न्यूज़पेपर, डिफरेंट न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स एट दैट टाइम ऑन द सेम डे, at the same day he said that the president declared the dismissal of the Mohammad Khan Janejo's government because उन्होंने इस चीज का जो अनाउंसमेंट दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इस टोटल इसका ब्लेम उन्होंने आर्मी को ठहराया। उन्होंने कहा कि आर्मी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट, कि ये जो आर्मी है इसकी वजह से ये वाकया हुआ, या उसके वक्त के फैक्ट जो है वो मैं आप लोगों से ग्रुप में डिस्कस कर लूंगा। बाय द कैप्शन क्वेश्चन हेडिंग को आप लोग यूज कर लीजिएगा इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर। जब आप लोग क्वेश्चन वेटेज को बनाएं तो आप लोगों ने वो पावर पॉइंट जो कि अगर वो बुक में नहीं है तो मेक श्योर आई डिस्कस विद दैट विद यू एंड जस्ट बी गिवन यू इन योर ग्रुप असाइनमेंट एंड यू जस्ट it's your own duty how to use that powerpoints or a paragraphs in these questions, okay. Zia साहब ने assemblies को तोड़ दिया at that time in the same assemblies and press conference held in army house. This is about 3 years region of Mohammad Khan, क्योंकि ज़िया साहब ने भी उसी दिन आर्मी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनाउंसमेंट दिया कि आई डिसमिस दिस गवर्नमेंट, कि मैंने इस गवर्नमेंट को
क्योंकि उस वक्त सदर के पास इसकी एक राइट होता था। वी डिस्कस अबाउट द 58(2)B, ये एक रूल था जो कि एक सदर के पास ये फुल पावर होती थी कि वो किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर अगर किसी किस्म का अगर उसको काम स्मूथ नजर नहीं आ रहा, मे बी देयर करप्शन, मे बी द गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग टू डूइंग बेटर डेवलपमेंट ऑफ वर्क, तो सदर साहब उसको गवर्नमेंट को रिप्लेस कर सकते थे। अफगान, a very good points regarding its tenure. Afghan Jihad, refugees problem and their impact of Pakistani society. Okay, the invasion of Russian forces, underline please, of Afghanistan in 1979. ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो कि बहुत उस वक्त पीक पे था अफगान ट्रॉप्स का बिटवीन रशियन ट्रॉप्स का created a new challenge for Pakistan. General Ziaul Haq adopted a firm policy. It's one of the good decision. Mr. Zia take decision at that time with great confidence and courage. क्योंकि जिया साहब में कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और पावर बड़ा जोर का था। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पर्सन इनको काउंट किया जाता था। So that's why he stood against like a wall, a strong solid wall against the interventions of the Russian forces. Russian forces के उस अटैक्स पे, उस सारे सिनेरियो पे जिया साहब ने एक स्टैंड लेते हुए बिल्कुल अफगान जो रिफ्यूजीज थे उनको प्रोटेक्ट किया, अपने कंट्री के बॉर्डर खोल दिए उन लोगों के लिए यहाँ पे रहने के लिए कि वहाँ पे अगर अटैक किया गया रशियन फोर्सेस की तरफ से तो उसको प्रोटेक्शन कैसे दी जाएगी फॉर द पुअर सिविलियंस ऑफ अफगान कम्युनिटी। द बिगिनिंग ऑफ जहाद मूवमेंट कैसे शुरू हुआ यहाँ पे। अफगान नेशन ब्रेवली, यू नो वेरी वेल, अफगान नेशन ब्रेवली स्टूड अगेंस्ट द रशियन अटैक। जब रशिया ने अटैक किया अफगान कम्युनिटी के ऊपर, अफगान नेशन पे, तो उन्होंने बकायदा बड़ी बहादुरी से उनका डट के मुकाबला किया। हालांकि उनके पास कोई इतनी एम्यूनिशन, इतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं थे, एक्सप्लोसिव उनके पास इतने नहीं थे जितना रशियन स्टेट के पास स्ट्रॉन्ग एम्यूनिशन, स्ट्रॉन्ग आर्मी, लेटेस्ट उनके पास। अगर अब हम देखें इससे भी, अब तो उनके पास बहुत ज्यादा लेटेस्ट एम्यूनिशन है। उस वक्त के टाइम के एम्यूनिशन 1979 के टाइम को हम डिस्कस कर रहे हैं कि उस वक्त उनके पास कितना सोर्सफुल मटेरियल था जंग के लिए। लेकिन अफगान जो ट्रूप्स थे, उन्होंने सोल्जर्स थे, उन्होंने बकायदा इसको डट के इनका मुकाबला किया। एंड दे डिक्लेयर्ड दे स्टार्टेड फ्रॉम जहाद, उन्होंने जहाद शुरू किया। कैसे? द मोरल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेज द मोरल ऑफ अफगान मुजाहिदीन। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अफगान मुजाहिदीन के लिए बाकायदा तौर पे फुली उन्हें सपोर्ट किया कि हमारे अफगान बशिंदे हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, नेशन ब्रदरहुड है हमारे। सो दैट्स वाई हमने इनके लिए अगर अपने कंट्री के बॉर्डर खोले हैं ओपनली, तो वाई वी नॉट वांट टू सपोर्ट इट टू विद देम। तो जिया साहब ने प्रॉपर उनको सपोर्ट किया, आलमी सतह पे इसके लिए उसको डिस्कस किया गया, वर्ल्ड लेवल पे जिया साहब इन टॉपिक्स को लेके गए। Okay, that the Mujahideen infatuated with the heavy defeated in Russian forces in every field. और मुजाहिदीन ने बकायदा इतना डट के मुकाबला किया कि उन्होंने रशियन फोर्सेस को हर स्टेप पे बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसे कह सकते हैं, शिकस्त दी। ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उस वक्त का इंसिडेंट है। रशिया was completely demoralized, underline please, and became helpless in 1986 at that time. But the jihad was continued and the continuous defeat disappointed the Russian tremendously. रशिया को कदम कदम पे बहुत बुरे तरीके से डिफीट हासिल हुआ, शिकस्त हुई और मुंह तोड़ जवाब दिया इन अफगान मुजाहिदीन ने। Okay, Geneva Accord very famous that time. America and Russia, okay, America and Russia, both two countries signed pact on that is called Geneva. Okay, 1988. The Prime Minister of Pakistan at that time, Mohammad Khan Jinnah, was there. Okay, and he also participated and signed on that territory. उन्होंने भी इस माहदे पे इन दोनों कंट्रीज के साथ, जब वो भी प्राइम मिनिस्टर हमारे वहाँ पे थे, उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट को शो किया। वो इंटरेस्ट क्या था? एंड रशिया एक्सेप्टेड, रशिया ने इसको कबूल किया। रशिया बेसिकली कंट्री द नेम ऑफ रूस ने इसको कबूल किया, इट्स डिफीट, अपनी शिकस्त को, कि मैंने वाकई जो शिकस्त मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, जो मैंने अफगानिस्तान में जंग लड़ी या मेरी जो वहाँ पे फौजें गई उनको मुंह तोड़ जवाब मिले। एंड रिड्यूस फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान ऑन, प्लीज अंडरलाइन दिस टाइमलाइन, 15 फरवरी 1989। और उन्होंने फौरी तौर पे डिक्लेयर किया कि मैं अपनी फौज को अनाउंसमेंट देता हूँ कि वो वापस आ जाए। दिस वाज द एंड ऑफ अफगान जहाद एंड दैट वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एट दैट टाइम। अफगान जहाद ने अपनी कामयाबी के साथ, अपने जहाद के उस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ जिसके ऊपर जहाद की बेस क्रिएट होती है, उन्होंने उस जंग को कामयाब किया और रशिया मजबूर हो गया वापस आने पे, अपनी फौज को बुलाने पे।
Next page, page number 16, the impact of Pakistani society. What is the impression of Pakistani society in the international platform regarding this subject? Okay, the migration of Afghan refugees. It's one of the committed thing. The migration कहते हैं हिजरत को, to change from one place to another one place. To Afghan refugees, महाजरीन को कहते हैं. To Pakistan during Russian attack and far-reaching effects of Pakistani society. More than, underline please for MCQs is target, is very most important. More than 30 lakh Afghan refugees at that time. More than 30 lakh Pakistan refugees migrated to Pakistan at that time. Pakistan gave them shelter, proper protection them to the refugees and look after them properly out of Islamic Brotherhood. क्योंकि ज़िया साहब ने जिस काम को भी अटेम्प्ट किया उसमें इस्लामिक कल्चर को बहुत रिप्रेजेंटेशन दी. वो कहते थे हमारे इस्लामिक ब्रदर हैं, हमारे इस्लामिक भाई हैं. वो खतबा हज्जतुल विदा, जैसे कि आपने पहले भी इसको मैंने डिस्कस किया था, उस बेस पे प्रिंसिपल पॉइंट्स को उन्होंने देखा, मद्देनजर रखा कि मुसलमान उससे मुसलमान का भाई है, वो उसका कत्लेआम नहीं कर सकता. इन्हें प्रोटेक्शन देखना, इनकी जानो माल की हिफाजत करना बीइंग एज पाकिस्तानी होने के, एक मुस्लिम होने के हमारा फर्ज है. और उन्होंने इसको बीइंग एज ए ह्यूमन सिंपैथी शो किया, जिसको वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिली, तरजीह मिली गई. सऊदीया ने बहुत हमें बकायदा इस बारे में, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट का ज़िया साहब के साथ बहुत अच्छा लिंक था, ज़िया साहब के साथ भी, मुशर्रफ साहब के साथ भी. सो दैट्स वाई उन्होंने इनको बहुत अच्छे वर्ड्स में, शाह फैसल ने एट दैट टाइम बहुत अच्छे ओपिनियन के साथ पाकिस्तान की अपनी स्पीचेस पे तारीफ की. और मुस्लिम उम्मा में जो मुस्लिम ब्रदर्स होते हैं हमारे, उन कंट्रीज में हमारे पाकिस्तान की इस कह सकते हैं खिदमत खल्क को बहुत तारीफी निगाह से, बुलंदी से देखा जाता है. इवन रेयर जो अफगान है ना, आज भी ये बात कमिटेड है कि जो अफगानी लोग हैं, जो रेयर अफगानी, वहाँ के नस्ली अफगानी हैं, वो पाकिस्तान के इस एफर्ट पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एहतराम करते हैं कि ये पाकिस्तानी कंट्री ने हमें इतना सपोर्ट किया था एट दैट टाइम, एंड स्पेशली मिस्टर ज़िया टू. द सर्विसेज ऑफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक आर प्रेज़वर्दी इन अफगान जहाद. ओके, प्लीज अंडरलाइन इट. And Pakistan was appreciated internationally for the successfully Afghan policies. This is the task which we discussed regarding Mr. Khan Janejo, Mr. Khan Mohammad Khan Janejo, and Zia Saab. What about the Zia's airplane crash का आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि उनकी डेथ हुई. मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको इसका जो क्वेश्चन मार्क था जो रिलेटेड था मिस्टर ज़िया की पर्सनैलिटी से, मैं दोबारा एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, मैंने ग्रुप में शेयर कर लिया था. मिस्टर ज़ियाउल हक from 1924 to 1988, from former president of Pakistan, born in Punjab and trained in the Indian Military Academy, was appointed in 1966 the Command and the Staff College of Pakistan. He was the Chief of Army Staff in 1976. He ousted the Bhutto's government in a military coup in July 1977. He became the President of Pakistan in 1978 and he died in the vicious airplane crash in August 1988. So this is one of the literally description regarding how to describe this personality. मोहम्मद खान जनेजो को जैसे मैंने पढ़ा, ओजड़ी कैंप का जैसे मैंने एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. What about describe the ओजड़ी कैंप incident? Okay, on 10th December 1988, an army weapons basically depot on ओजड़ी कैंप blew up. आग भड़क उठी, वहाँ पर धमाका हुआ, destruction there. The dump was located in the middle of densely populated area between the Islamabad and Rawalpindi. Okay, and hundreds of civilians were killed, with thousands more injured too. Okay, Prime Minister Janejo ordered an immediate inquiry into the explosion. This was unacceptable for Zia and army, क्योंकि ज़िया साहब के लिए और उनकी आर्मी के लिए ये जो बयान था, जो उन्होंने साफ कहा कि आर्मी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबल है, उनकी वजह से सब कुछ हुआ, तो ज़िया साहब के लिए इन चीज़ों को बियर करना बहुत ही मुश्किल था. सो दैट्स व्हाई उन्होंने जनेजो साहब को रिप्लेस कर दिया. ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक आई डिस्कस विद यू वन मोर पर्सनैलिटी, वन ऑफ द वेल रिनोन एंड वेल फेम पर्सनैलिटी, बेनज़ीर भुट्टो. In the next week, inshallah ta'ala, हम पढ़ेंगे, and I make sure to you just also to get inspiration and influence from this personality too. और वो आप लोगों ने इस बारे में ऑलरेडी कुछ इन्फो पहले कलेक्ट करके रखना है, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपके पॉइंट्स मेरे उन पावर पॉइंट्स से मैच कर दें. बंडल ऑफ थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एट होम.